So dear students, now we are able to study reaction mechanism. We already discussed isomerism, types of isomerism, okay, structural isomerism, stereoisomerism. In structural isomerism, we have studied its types, right? Which one is types? Chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism, ring and chain isomerism. So now we are able to understand reaction mechanism. So अब बहुत जने सोच रहे हैं बहुत टफ रहेगा ये, बहुत टफ रहता रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो बहुत जने जल्दी समझ में नहीं आता, right? So I will give surety that it's very easy. Okay, let us start from basics. मैं जितना हो सके बेसिक से स्टार्ट करूं. Okay, it's very easy to understand. So let us discuss reaction mechanism. You can expect one or two questions from this concept only. Okay, so now what is reaction mechanism actually? Yes, reaction mechanism का तो क्या हमारे दिमाग में क्या आता? रिएक्शन होता, प्रोडक्ट बनता, ठीक है, एक रिएक्टेंट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता, उसे एक दूसरा रिएक्टेंट आपको अटैक करता, फिर प्रोडक्ट बनता. Similarly, a touch reaction mechanism, ठीक है. So एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता, that is called substrate. Substrate. For that substrate, a attacking molecule attacks to that substrate, then it converts to intermediate. So intermediate is nothing but not a final product. It is nothing but a intermediate. It's just a between the reactant product. It is the intermediate between reactants and products. Okay. So this is not the final product. Then after intermediate, we will get the final product. Then leaving group separates out. तो ये हुआ just reaction mechanism. I will give introduction. I will give example for this. So what will be reaction mechanism? Yes. Yes. So we can now when the reagent attacks the organic compound. Take down. When the reagent attacks the organic compound, when reagent attacks the organic compound, then reaction happens. Then reaction happens to give products. Product or products. Okay. एक से ज्यादा भी products हो सकते हैं. So this is nothing but a simple explanation of reaction mechanism. चलो, let us take. I will give a simple example for this. Imagine this is your organic compound which undergoing reaction. Okay. So it is called substrate, or it is a organic molecule. We can call it as substrate in to be more technically. So it is substrate. So when this organic molecule called substrate undergoes attack of nucleophile, I will write nucleophile as like this. For our understanding, NUC I am writing nucleophile. So this nucleophile attacks to this organic compound to give a intermediate. So this double bond breaks. Okay, double bond breaks here. Single bond exists and the double bond, electrons from the double bond comes to this oxygen as a negative charge and here attacks the nucleophile and here R and here X. So this is not the final product, this is called intermediate. It is called intermediate. इसे क्या बोलते हैं? Intermediate कहते हैं. समझ में आया? So after that intermediate, we will expect the. So here X is nothing but the leaving group. This is nothing but leaving group. So it leaves the organic molecule. The bond breaks here
and this bond formed here, this bond breaks here. ये bond बनी और ये bond break हो जाती. So to get the what? The organic molecule is nothing but what? And here double bond regains. Double bond और एक बार आती तो यहाँ nucleophile attack. So this is the final product. Okay, this is first step, second and third. Okay, तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म का. आगे जाएंगे इसमें क्या क्या रहता. तो एक तो रहता ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. द फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें जो डिस्कस करने जाती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता, और इट इज आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट. Then attacking reagent. Attacking reagents is also important here. For example, nucleophile, electrophile, okay, free radicals. How many types of attacking reagents we can expect? Nucleophile, electrophile, free radicals, okay, etc. So next is nothing but after attacking reagent we can expect leaving group. Leaving group हमें मिलता सो क्या है यहाँ? Leaving group लास्ट में बच जाता सो. So it's a no divisions. Next is nothing but bond cleavage. Bond cleavage. So bond cleavage we know that already we studied. It is divided into homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Homolytic or heterolytic. Homolytic cleavage and heterolytic cleavage. So I am expecting you are writing with me. Okay, you are getting more clear and clear. Okay, don't ignore this. So next thing is after bond cleavage we will discuss about intermediate. This one, ये intermediate के बारे में बात करेंगे. Intermediate is nothing but in the form of कार्बोकैटायन. से कार्बोकैटायन भी कहती है. इसमें इंटरमीडिएट में क्या क्या आती? कार्बोकैटायन, कार्बेनियन and carbene. Okay, carbenes, free radicals. So these are nothing but intermediates we can expect. Next, last thing is products. Okay, and the last thing is byproduct. जो लास्ट में आता है वो प्रोडक्ट, और साथ में प्रोडक्ट के साथ में जो आता और उसके साथ एक्स्ट्रा जो आता उसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट. तो ये चीजें हमें डिस्कस करने जा रही. तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, सबस्ट्रेट भी बोल दी. देन अटैकिंग रिएजेंट, जो रिएजेंट अटैक करने जा रहा वो. फिर लीविंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप लीव हो रहा वो भी स्टडी करेंगे डिटेल में. बॉन्ड क्लीवेज, जो बॉन्ड ब्रेक हो रही, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज कैसा हो सकती, होमोलिटिक होती है, हेटेरोलिटिक होती. फिर इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट बना वो किस टाइप के रहता, उसके क्या प्रॉपर्टीज रहती. कार्बोयन, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स. उसके बाद प्रोडक्ट जो आया, प्रोडक्ट के कैसा बना और कितने तरह के प्रोडक्ट्स रहती और बाई प्रोडक्ट होता क्या. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Over. So I expect you are going with me. Okay, please match my speed. जब तक आप इसे वर्क नहीं कर रहे साथ में समझ में नहीं आता. We are expect two or one or two questions from this reaction mechanism. Okay, so एक क्वेश्चन तो गारंटी नॉमेनक्लेचर से आता, यूपैक नॉमेनक्लेचर, और एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से आ सकता, और एक क्वेश्चन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म से आ सकता. सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस द फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल.
Are you able to see this? Is it visible? Organic molecule is also called substrate. सबस्ट्रेट कहते हैं इसे, ठीक है। ये तो क्या भी बहस करने का ऐसा क्या भी नहीं है, इट हैज नो एनी डेफिनेशन, एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। सो नाउ द अदर थिंग इज attacking reagent. The second thing is attacking reagent. So क्या बोले तो ऐसा अटैक कर डालता क्या इन्हें, ओके। सो इट्स विल अटैक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें समझ लेना अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल स्टडी करेंगे। व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफाइल? complete information about the nucleophile. Sometimes it is written as Nu, ऊपर दो नुक्ते डालते हैं सा, क्या ये दो नुक्ते के? तो these are free electrons, they are free electrons, they are able to donate electrons, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सब टेक्स्ट में ऐसा भी है, ठीक है। NuC भी लिखते हैं, Nu भी लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल, और Nu माइनस करके भी लिखते हैं, ओके। योर चॉइस, तुम्हें कैसा लिख सकते हो ऐसा। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? एस, कैन यू डिफाइन इट? सो हियर सी, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो के तो क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस हमें यहाँ एटॉमिक न्यूक्लियस। सो फाइल के तो क्या? लविंग, लविंग, लव, ठीक है। तो इन्हें न्यूक्लियस को लव करने वाला, मतलब न्यूक्लियस लविंग मींस, ओके, इट एक्सपेक्ट न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस होना मतलब इन्हें न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियस क्या? पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो इन्हें इसे न्यूक्लियस होना का इन्हें कैसा रहेगा? सो इन्हें नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग बट, yes, a nucleophile is a chemical species that donates an electron. तो इन्हें नेगेटिवली चार्ज होता, ठीक है। तो इन्हें न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इन्हें नेगेटिवली चार्ज्ड, और क्या है सो न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो ए न्यूट्रल स्पीशीज, ए न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। सो नाउ लेट अस डिस्कस nucleophile definition, small definition. What is a nucleophile? Nucleophile, S, is a chemical species that donates तुम्हारा ये definition क्या पूछता नहीं, you have to just be informed. A pair of electrons to form बॉन्ड, ओके, केमिकल बॉन्ड भी बोल सकते। तो इन्हें क्या करता न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर ज्यादा रहती, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर इन्हें डोनेट करने रेडी रहता, और इन्हें डोनेट कर को बॉन्ड बनाता दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इसीलिए इसे नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, बिकॉज इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप डिस्कस करेंगे some examples. Let us give some examples for this nucleophile के कुछ examples हैं। So you know that bromine minus को लिखते हैं हमें because it has lone pair of electrons, okay, lone pair of electrons के पास आती हैं। So next, these are nothing but lone pairs, okay, OH minus को सुनी तुम्हें, so oxygen has lone pair of electrons, okay। Next, CN करको सुनको cyanoid, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, इन्हें माइनस। इसी तरह से NH3 करको सुनको ही नहीं, ओके, NH3, it has also one lone pair of electron at the top. So already we have discussed in chemical bonding. I love you know that these are nothing but the Lewis dot structures. So let's move further. These are also called Lewis bases. Nucleophiles are also called Lewis. अब Lewis base किसे बोलते हैं वो हम ना को सिलेक्शन में आता, yes,
कौन सा लेसन जो चल रहा था ना, लेविस बेसिस कम्स इन आयनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो लेसन है उसमें आ जाता। तो अब इसमें क्या रहता, सो लेविस न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो ए, these are also called Lewis base, Lewis base you बोलती, Lewis you बोलती, your choice। Lewis base कहती because it has, what is a Lewis base? It can donate a pair of electron, it can donate a pair of electron, okay। तो लेविस बेस किसे बोलते हैं, जो भी एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होता उन्हें लेविस बेस। अब इनो भी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने रेडी हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं भर को हैं, तो इनको भी लेविस बेस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, हाउ शुड वी नो, ओके, एक न्यूक्लियोफाइल को हमने कैसे मालूम होना, इनेज न्यूक्लियोफाइल को कैसा मालूम हुआ, इनेज की मालूम हुआ, इन्हें क्यों मालूम हुआ, इसके पास क्या तो क्लू है क्या, इनेज न्यूक्लियोफाइल का कैसा मालूम हुआ? एस, हाउ शुड यू नो, दो चीज आई, उसके पास हैव अ नेगेटिव चार्ज, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज करको है ऐसा आगे तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल, किसी के कोई से भी स्पीशीज के पास नेगेटिव चार्ज है तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल। नहीं तो और एक चीज क्या है, have lone pair of electron, have lone pair of electron, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहना, मालूम हो रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें न्यूक्लियोफाइल, नहीं तो एटलीस्ट ए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कई को, पाई बॉन्ड तभी रहना के तो क्या मतलब, उसके पास इस तरह से डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तभी रहना है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते क्या होंगे, तो देखो पाई बॉन्ड का तो क्या हमें मालूम है, एस पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू पाई पी ऑर्बिटल्स, ओके, किस प्लेन में रहती है नो पी ऑर्बिटल्स, तो आपस में उन्हें अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां घूमते रहती हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है घूमते रहता उन्हें अवेलेबल रहता डोनेशन के लिए, ठीक है, ऐसा भी उसे लिख सकती हैं, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अबोव एंड बिलो द प्लेन, अबोव एंड बिलो द प्लेन, कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे ऐसे क्लाउड्स डाले तो इलेक्ट्रॉन है वहां, इलेक्ट्रॉन घूम रहा जो अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो या तो पाई बॉन्ड होना, एक लोन पेयर होना है तो नेगेटिव चार्ज है तो उसे हमें न्यूक्लियोफाइल करके बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस नाउ डिस्कस, लेट अस गिव एग्जांपल फॉर दिस बिफोर गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, यहाँ कोई सा भी कंपाउंड ले लो, let us take any compound having, okay, COH, okay, OH है, Br है, तो OH हमें यहाँ पे लेने, दिस इज इट इज द थिंग बट ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ कंपाउंड को अटैक करना, अटैकिंग रिएजेंट इन्हें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हें, अब इन्हें यहाँ अटैक करना के तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होना नहीं, एस दिस बॉन्ड शुड ब्रेक, सो ब्रोमीन जैसे ही उन्हें आको अटैक करता, ओके, इन्हें आको यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेता, वो एच एच क्या भी चेंज नहीं होते, और इन्हें क्या होता, ब्रोमाइन अलग हो जाता उसके, ओके, घर से उसके जो है से अलग हो गया उन्हें, बिकॉज इट्स वेरी वीक, इट्स स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहता नहीं वीक रहता, बॉन्ड ब्रेक हो जाती, इन्हें एक नई बॉन्ड बना लेता, और तो रिएक्शन मैकेनिज्म का तो क्या, वहां प्रोडक्ट बन रही, रिएक्टेंट जाको क्या हो रही, प्रोडक्ट बन रही, तो ऑब्वियसली वहां क्या है, बॉन्ड ब्रेक भी होना और नए बॉन्ड भी बनना, बॉन्ड्स ब्रेक भी होती, नए बॉन्ड्स भी बनती, तभी उसे बोलते हैं हमें रिएक्शन हुआ कर, तो ये सभी क्या होता है रिएक्शन मेजर में होता। तो अब क्या मालूम हम ना, और कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकती, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा मालूम करना, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, ओके, कैसा मालूम करना, हाउ टू फाइंड आउट। चलो एग्जांपल देंगे, OH माइनस ज्यादा स्ट्रांग है कि Br माइनस स्ट्रांग है, कैसा मालूम करना, दिस इज नथिंग बट ए क्वेश्चन, टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी गो फर्दर।
you able to see clearly? So this is very important concept, nucleophile. You can expect question from here. साथ साथ में लिख लेते भी रहना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके? ओके, एनीवे तेरे बच्चे क्या है, सुनते हुए अच्छा लिख लेती। तेरे बच्चे क्या है, नहीं हमने आता हम स्क्रीनशॉट लेको ही बस बस हम ना करती, ठीक है? एनीवे नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेक इट डाउन। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, or it is also called nucleophilicity. Nucleophilicity, to be more technical, okay? Nucleophilicity बोलते हैं हम उसे, okay? As electron density increases, देखो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल कब स्ट्रांग होता है, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहती उतना उन्हें स्ट्रांग, समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन रहती होता स्ट्रांग। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल में तो उन्हें ज्यादा स्ट्रांग, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कम स्ट्रांग, ठीक है? वी कैन राइट हियर एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases, nucleophilicity also increases, okay? न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, OH माइनस करके हमें लेती। सो इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन पे दो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहती। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन H2O। मैं इधर एग्जांपल्स देखता हूँ, देख लो यहाँ एक है, यहाँ एक है। फिर इसी तरह से NH2, इसमें कौन सा, दो में, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? कौन बोलती? S, open up, which one among these is more strong nucleophile? Obviously there is a 3 lone pairs here also 3 lone pairs. With that 3 lone pairs, here extra negative is there, ये नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रांग हुआ, एस स्ट्रांग, ओके स्ट्रांग। सो दिस इज वीकर देन दिस, ये नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो दिस इज मोर स्ट्रांगर देन दिस। इसमें एस फॉर दिस कंपेयर, इट्स आल्सो द NH2 is more strong। मालूम है? यहाँ लोन पेयर भी है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ सिर्फ एक लोन पेयर है, यहाँ 3 लोन पेयर से, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, which has more strength। So NH2 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू NH3। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा तो हम ना फ्लोरीन क्लोरीन का ऑर्डर लिखो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है अगर पूछे हम ना, तब क्या करना हमें? वी शुड नो द concept here, down the group nucleophilicity decreases, down the group nucleophilicity decreases। जो ग्रुप रहता पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, मालूम हुआ? जैसे जैसे हमें नीचे जाती है, देखो ये फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन इसके नीचे रहता, ब्रोमीन इसके नीचे रहता, आयोडीन इसके नीचे रहता, ओके ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में देखो, यू कैन ऑब्जर्व ग्रुप 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडीन। सो फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, क्लोरीन इज लार्जर देन फ्लोरीन, ब्रोमाइन इज लार्जर देन क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है? आयोडीन इज मोर, आयोडीन हैज मोर डेंसिटी चार्ज, मींस डेंसिटी इसकी ज्यादा रहती, दैट इज डेंसिटी चार्ज बोल सकते हैं हमें यहाँ, उसका मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम,
चार्ज डेंसिटी भी बोलती है या डेंसिटी बोलती, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे अगर साइज बढ़ रहा है तो साइज इज इंक्रीजिंग, आयोडीन इज मोर ग्रेटर देन दिस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन, सो वॉल्यूम बढ़ता, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता नहीं, सो चार्ज कम हो जाता। ठीक है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम क्या होता, डेंसिटी कम हो जाती, चार्ज डेंसिटी कम हो जाती, सो दैट्स व्हाई आयोडीन इज वीकर। ठीक है, सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी रहती, उससे जरा ज्यादा, उससे जरा ज्यादा, सबसे ज्यादा, दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग nucleophile because it has small size, so charge density is more, small size charge density is more, so more stronger, fluorine is more stronger nucleophile। मालूम हो रहा, तो ये हुआ। नेक्स्ट एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव मालूम है तुम ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टोटल साइलेंस। ओके, परवाह नहीं बोलो, गलत तो होने। Electronegativity is nothing but tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself। एक एटम क्या करता है, दूसरे जो है उन्हें शेयर करके रहता है इलेक्ट्रॉन्स दूसरों के साथ, वो अपने तरफ खींच को रहता, अट्रैक्ट करता। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो क्या उन्हें अपने तरफ खींचना कर को नहीं, अपने तरफ क्या करता उन्हें खींचता। सो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना बढ़ लग जाती, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस की वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता एटम उन्हें अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच को रखता, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को देने की कैपेसिटी नहीं होती, मालूम हो रहा, तो इन्हें डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस, न्यूक्लियोसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल क्या होता है हमें देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज along the period, along the period हमें कहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा वेरी होती, I have to be more clear here। Okay, electronegativity depends on atomic size, as you know, so atomic size decreases along the period, so electronegativity increases along the period, मालूम हो रहा। so electronegativity क्या होती, इंक्रीज होती होंगे तो पीरियड में। ठीक है, तो पीरियड में कौन कौन से ही, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, उसके लेस, इससे जरा कम ऑक्सीजन, इससे जरा कम नाइट्रोजन, इससे जरा कम कार्बन, सो फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जहां कहीं भी इसके साथ आती, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जितना इंक्रीज होती, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा, करा सुने, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती, तो फ्लोरीन हैज लेस, बोलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब विशेष तूने कंपाउंड्स बना डालता, CH3 NH2 और कुछ एग्जांपल OH माइनस, देन साथ में F माइनस, इसमें कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, व्हाट इज द ऑर्डर भी पूछ सकता, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, so you can say fluorine is more electronegative, so it has less, least nucleophilicity, it has S highest nucleophilicity, इसकी ज्यादा रहती, इसकी कम रहती, so it is a decreases, right। धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ, डिक्रीज होने को जा रहा, देख रही तुम्हें, so CH3 has more nucleosity than this, NH2 is more than this, अब कौन सा मार्क डालना है हमें यहाँ, greater than, ठीक है, so greater than, so keep this thing in your mind and also in your book, very very important, you can ask a question from here। ठीक है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल के बारे में, पूरा न्यूक्लियोफाइल की जड़ी बूटी होगी। आगे जाएंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
नेक्स्ट आगे जाएंगे। तो उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ। वी हैव इलेक्ट्रोफिल क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोफाइल। So let us learn about electrophile. So as we discussed earlier, electro means what here? Electro and file meaning. Can you guess? आप भी गेस करते रहना बीच बीच में, ठीक है? चलो बोलो, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन. फाइल मीन्स लविंग. तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लविंग, इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सो नेगेटिव चार्ज. You know that, okay? Electron is a negatively charged species. So इन्हें इलेक्ट्रॉन को लव कराएगा तो इन्हें क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. So like electrophile is positively charged. Positively charged or neutral. Neutral भी हो सकता है, इन्हें positively charged भी हो सकता. Got it? So it is attracted to electron. We can write nucleophile is attracted to electron. Attracted to electron. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है इन्हें, कि तो इन्हें पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन that participates in a chemical reaction. That participates in a chemical reaction. जो भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता उसे इन्हें अट्रैक्ट करता by accepting an electron pair. By accepting an electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, क्या करता? यस, पार्टिसिपेट करता, अट्रैक्ट करता. So these are Lewis acids. As you know, Lewis acids किसे बोलते हैं? तो हमें जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज रहती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें कम रहती हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव रहती है. सो इलेक्ट्रॉन कम है तो उन्हें पॉजिटिवली चार्ज हो जाती. तो जो भी पॉजिटिव रहता है उन्हें लेविस एसिड होने, ठीक है? सो दीज आर आल्सो, दीज एक्ट एज लेविस एसिड्स. इनको लेविस एसिड्स भी बोलते हैं, लेविस एसिड्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक some examples of electrophiles. BF3, I think you are familiar with this BF3. Okay, next NO2. So here B is totally electron deficient. Why it is totally electron deficient? So B has only, okay, so B has only 3 electrons to donate with the fluorine. Fluorine के साथ उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेता. और ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो ऑक्टेट नहीं होता. यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है, टोटल ऑक्टेट नहीं होता, जिस 6 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, सो टू अटेंड ऑक्टेट इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स होना इसे ऑक्टेट हासिल करने के लिए. टू मेक इट ऑक्टेट स्टेट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. So it is electron deficient, means it is a B electrons होना, so it has a positive charge. Okay, so next thing is nitrogen. Nitrogen भी क्या है यहाँ? नाइट्रोजन के पास भी ऑक्टेट नहीं हुआ, तो इन्हें भी यहाँ ना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे. सो ऑक्टेट जब भी कंप्लीट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती, तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता, तो उन्हें इलेक्ट्रोफाइलों को एक्ट होता. तो यहाँ हमने एक चीज कंफर्म ही कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता. आर यू क्लियर? ओके, एनी क्लैरिफिकेशंस यू नीड? सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफिल. तो इतना इसके बारे में पढ़े हमें. टेक आउट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट वी मूव टू द फ्री रेडिकल्स. और चलो आगे जाएंगे. So let us discuss free radicals. Free radicals का तो क्या? तो इन्हों भी अटैकिंग रिएजेंट्स हो सकती हैं फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स का तुम्हें क्या मालूम हो रहा? फ्री रहती हैं, किसके साथ भी, जड़ को नहीं रहते. करेक्ट.
एग्जैक्टली. सो दीज आर न्यूट्रल. इनो क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल स्पीशीज. न्यूट्रल रहती, नेगेटिव रहते नहीं, पॉजिटिव भी रहते नहीं. हम क्या भी नकोच करती हो, नेगेटिव भी चार्ज नहीं, पॉजिटिव भी चार्ज नहीं, दे आर फ्री. ओके. सो जैसे एग्जांपल दे तुम्हें, यहाँ Cl एक मॉलिक्यूल है, Cl2 करके एक मॉलिक्यूल है, उसे मैं ऐसा लिख सकती, Cl करके S, S वी कैन राइट. सो Cl जब भी ब्रेक हो जाता, ब्रेक हुआ इस घड़ी क्या होता है यहाँ, it will split into in the presence of UV light. UV रेडिएशन जो है नहीं, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस. ओके, यूवी रेडिएशन बहुत स्ट्रांग रहती है, आग को ऐसे ब्रेक कर सकती. एनर्जी, इसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी खत्म हो जाती तो ब्रेक हो जाता. तो दिस Cl मॉलिक्यूल splits into टू फ्री रेडिकल्स. ये दो फ्री रेडिकल्स बन जाती. मालूम हो रहा, Cl ये डॉट क्या है, दिस डॉट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड. जो नो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब शेयर कर लेती तब भी ना बॉन्ड बनती. इन्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बन गई. तो कोई भी बॉन्ड का तो क्या, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स होती. एवरी बॉन्ड हैज टू इलेक्ट्रॉन्स. ऑलवेज माइंड इट. ओके. नेक्स्ट एक जरा प्रॉब्लम्स करेंगे तब तुम ना मालूम हो जाता. गिविंग जस्टिफिकेशन करो. आई विल रब दिस. Take down one problem, giving justification. Categorize the following molecules or ions or as nucleophiles and electrophiles. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है करको इसमें हमें मालूम करना, कैटेगराइज करना. ठीक है. तो एक है HS माइनस, BF3, C2H5O माइनस, CH3 thrice N, Cl माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 माइनस NO2 प्लस. ओके. सो इसमें से हमें कैटेगराइज करना कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल. ओके. जस्ट मेक टू कॉलम्स, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. तो कौन सा दिख रहा तुम ना न्यूक्लियोफाइल यहाँ, कैन यू डू इट. Yes, let us recall what is nucleophile. It is negatively charged. कैसा मालूम करना न्यूक्लियोफाइल करको, उसके पास है तो नेगेटिव रहता या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती, दो में से एक रहता. ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल के तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता. हम इस देखे तो मालूम कर लीजिए NH. ओके. तो यहाँ देखो, यहाँ है नेगेटिवली चार्ज है तो इन्हें न्यूक्लियोफाइल. BF3 as we know B has only 3 electrons, तो यहाँ टोटल इन्हें 3 बॉन्ड बनाता तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स होती. ऑक्टेट ने हासिल नहीं करा, ऑक्टेट नहीं बना तो इन्हें पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज BF3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल. C2H5O माइनस, देखो यहाँ O माइनस करके शो कर रहा तो इट इज ऑलवेज, सो इट इज ऑलरेडी ए न्यूक्लियोफाइल. देन हियर CH3 थ्राइस N, N के पास दो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर रहा है तो क्या होता उन्हें, न्यूक्लियोफाइल हो जाता. करेक्ट. नेक्स्ट Cl माइनस करके शो कर रहा, माइनस रहा है तो क्या करके डालना तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल. यहाँ प्लस शो कर रहा, प्लस का तो क्या मालूम है तुम ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन. ठीक है. तो यहाँ है ना, इन्हें नेगेटिव रहता है, यहाँ पॉजिटिव रहता, तो हमें इसे पॉजिटिव देखकर हमें ले लेते. तो इट इज नॉट NH2 माइनस करके है तो बिना झिझक डालो
nucleophile. So next N2 plus NO2 plus, okay, electrophile. तो ये हुआ एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल्स तुम पूछने के रेयर केसेस। और एक प्रॉब्लम देखेंगे हम ना मालूम हो जाता। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आइडेंटिफाई नेक्स्ट प्रॉब्लम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब जरा यहाँ तुम ना इसमें से इलेक्ट्रोफाइल्स देता, उसमें इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर को सा मालूम करना। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, electrophilic center in the following. Okay. CH3 CH CH3 CHO, first one, second one CH3 C triple bond N, third one CH3 X. Alright, just more be to be more precise, we write halogen I. So observe करो यहाँ कौन सा नेगेटिव आता कौन सा पॉजिटिव आता एटम। हमें क्या करना, सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मालूम करना। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ऑक्सीजन तो नहीं आता, चलो देखेंगे। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन्हें, सो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ खींची जाती, तो ये नेगेटिव हो जाता है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक है तो इन्हें पॉजिटिव हो जाता, तब इन्हें क्या हो गया, कार्बन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नेक्स्ट हियर ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें खींच लेता, तो ये डबल बॉन्ड करेगी तो इन्हें माइनस इन्हें प्लस, ठीक है। तो यहाँ भी कार्बन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नेक्स्ट यहाँ देखो, आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एज वी नो, सो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाती है इन्हें माइनस इन्हें प्लस, सो कार्बन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता, which is the electrophilic center among the following. Are you ready for this? Take out a screenshot of this. Next we move to the next concept. The last thing is leaving group. Leaving group किसे बोलते हैं? Over? Okay. So I think you are more clearer among nucleophile and electrophile. Yes or no? जोर से बोलो। किसे किसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पूरा समझ में आ गया, उन्होंने कमेंट्स कर सकती। यूट्यूब में जाको आई एम वेरी क्लियर अबाउट द न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ओके, क्रिस्टल क्लियर हम ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कमेंट करो, ओके, यूट्यूब में। सो नेक्स्ट leaving group, this is nothing but the last thing in what? Last thing in the attacking reagents. Leaving group किसे बोलते हैं leaving group? Not every group leaves, हर एक ग्रुप लीव नहीं करता। एक चीज याद रखना इसमें, not every group leaves, हर एक ग्रुप निकलता नहीं। थोड़े क्या होती, गुड लिविंग ग्रुप्स होती, थोड़े बैड लिविंग ग्रुप्स होती। इट डिपेंड्स how good or yes how bad the group is, how bad the group is। देखो हर एक ग्रुप जो अटैच्ड रहता वो लीव नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो कोई भी ग्रुप कितना गुड है और कितना बैड ग्रुप, लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। ओके, क्या ये गुड बैड कर इंसर्ट करो, समझ लेंगे।
गुड लिविंग ग्रुप का तो क्या, जल्दी जाने वाला। देखो हमारा घर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल। एक घर में कौन की आदमी है, उसका घर वो हो सके एक बाहर का आदमी आगो से घर से आगो बैठ गया तो निकल बाहर बाहर डाल दूंगा तो वो घर वाला क्या करना, मेरा घर ये घर को मैं किसी भी हालत में छोड़ता नहीं, मैं हाँ चल तो मेरा घर है घर को बैठ गया तो क्या है उन्हें बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप का तो उन्हें छोड़ रहा नहीं, जाने से रेडी नहीं। अब वो कौन तभी एक आइस घड़ी को उन्हें चले गया तो हूँ बात छोड़वा कर वो बाहर चले गया घर छोड़ तो उन्हें गुड लिविंग ग्रुप, उन्हें क्या है लिविंग ग्रुप जल्दी उन्हें लीव कर रहा, जल्दी भाग चले जा रहा है तो उन्हें गुड लिविंग ग्रुप। इसी ऐसा क्या है, मॉलिक्यूल्स में भी बैड लिविंग भी रहती, गुड लिविंग ग्रुप भी रहती। चलो गुड लिविंग ग्रुप फैक्टर्स कैसे समझना हमें, गुड लिविंग ग्रुप कर को कोई भी एक ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप कर कैसा हमें समझना। गुड लिविंग ग्रुप जिसे हमें GLP कहती हैं और आवर शॉर्ट टर्म्स आड़े नामा, ठीक है छोटे छोटे नामा। गुड लिविंग ग्रुप फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हमें गुड लिविंग ग्रुप करके बोल सकती हैं। एस देखो गुड लिविंग ग्रुप क्या करता, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक गुड लिविंग ग्रुप जी, ओके GLG गुड लिविंग ग्रुप। ओके गुड लिविंग ग्रुप आर वीक बेसिस, गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस, इन्हों क्या है तो कमजोर बेसिस वाले, जो भी वीक बेस रहता उन्हें गुड लिविंग ग्रुप का तो क्या होंगे तो बेस क्या करती सो, बेस डोनेट डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मालूम हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इनो आसानी से डालती, इजीली डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली, इनो जल्दी देने रेडी रहती। वीक बेस तो वीक बेस जैसे एग्जांपल देखो Cl माइनस कर को एक इलेक्ट्रॉन कैस कौन सा है लिविंग ग्रुप है, ब्रोमाइन माइनस कर को एक है, आयोडीन माइनस कर को है। These are excellent living groups. All halogens are excellent living groups. Excellent living groups, you know. ठीक है तो इनके पास वीक बेस को अटैक करते हैं, इनके पास क्या है ज्यादा बेस नहीं है, जो वीक बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है तो जल्दी क्या है तो अलग हो जाते हैं। Br minus is more readily gives electrons, so it is a good leaving group. Next और एक है OH minus, पूर लीविंग ग्रुप, इन्हें पूर लीविंग ग्रुप की वो स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस, इन्हें इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन्हें OH माइनस बहुत स्ट्रांगली रहता, इन्हें कौन भी आपको दूसरा अटैकिंग रिएजेंट आगे से बोला तो ऐसे जा गए तो इन्हें जाता नहीं, बहुत स्ट्रांगली इन्हें बैठ को रहता, मैं जाता नहीं किसी क्या तो भी कर लेगा को, तो इन्हें पूर लिविंग ग्रुप। ओके स्ट्रॉन्ग बेस प्योर पूर लिविंग ग्रुप, जल्दी नहीं जाता, इन्हें जल्दी लीव नहीं करता, इसलिए पूर लिविंग ग्रुप बोलती। इसी तरह से F माइनस, यहाँ तो मैं गौर करे रहेगा मैं F नहीं लिखा, तो F माइनस इट इज आल्सो ये पूर लिविंग ग्रुप, इन्हें भी पूर लिविंग ग्रुप, तो इन्हें भी स्ट्रॉन्ग बेस। F माइनस भी जो है बहुत छोटा रहता, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा रहती, तो इन्हें जल्दी जो है बॉन्ड नहीं ब्रेक करता, जाता नहीं वहां से, कितना भी अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेंगे इट डज नॉट लीव इट्स स्पेस, सो इट इज आल्सो ए पूर लिविंग ग्रुप। अब इसमें से तो क्वेश्चन पूछा तुमने यहाँ F माइनस OH माइनस NH3 NH2 माइनस CH3 माइनस, सब में से कौन सा बेस्ट पूर लिविंग ग्रुप है नहीं, कोसास जो व्हाट इज द ऑर्डर फॉर लिविंग ग्रुप का, तो क्या बोलती तुम्हें फ्लोरीन इज मोर, ओके स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है पूर लिविंग ग्रुप, उससे जरा पूरी ने उससे जरा पूरी ने सबसे जरा, ठीक है तो CH3 फ्लोरीन इज मोर लिविंग ग्रुप, इसकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, इन्हें जल्दी नहीं जाता, इन्हें उससे जरा, ठीक है स्ट्रॉन्ग बेस, इससे ज्यादा इन्हें सबसे कम लिविंग इन्हें CH3 जल्दी चले जाता, तो इन्हें जल्दी नहीं जाता, इन्हें जल्दी चले जाता।
तो ये तुमने हुआ लिविंग ग्रुप के बारे में. सो 1 hour completed. सो टुमारो विल डिस्कस मोर इन दिस. ओके, तो लिविंग ग्रुप भी हुआ, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद का कंटिन्यू. सो टुडे यू हैव टू, yes, you have to focus on these things. Study well, study MTG. Okay, do your examples. Okay, insert examples करो, problems करते रहो, तुम्हें आता. I will suggest NCERT for this. Okay, problems भी डाल करता हूँ. All the best. Thank you.